हेलो। ओके, आज हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग infinitely long state parallel conductors. Means force between two infinitely long state parallel current carrying conductors. Here we have to determine the force between them, and it is also a very important topic. Here first of all I am just making a figure. This one is a infinitely long current carrying conductor, that is a I current, that is I1 current is flowing through this conductor. It is a conductor 1. इसको मैंने conductor 1 कह दिया है, ठीक है. And that is another conductor, that is a conductor 2. Current carrying conductor means that is 2, and I2 is also current. I2 is the current flowing through this conductor, that is I2. And these two conductors are separated by a distance. Let it is R, means ये R distance है इन दोनों conductors के बीच की, और ये दो conductors हैं which are parallel conductors and infinitely long conductor. When we are writing this expression in your notebook, so just we write in such a way: consider two infinitely long parallel current carrying conductors. Let I1 I2 be the current flowing through a conductor respective conductor 1 and 2 respectively in same direction. एक चीज और मेंशन कर दीजिए, in same direction, and R is the distance between these two parallel conductors. Now we have to determine the magnetic. We know the magnetic field due to a straight long conductor. The magnetic field at any point, ऑन अ कंडक्टर 2 मीन्स यहाँ पर इस जगह पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस वन कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट वन, ड्यू टू I1 करंट. तो दैट इज इक्वल टू, ये हमारा एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ये चूज कर लिया, इस पर हमें निकालनी है ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 pi, and that is equal to 2I1 over R, that is 2I1 over R. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ, that is the equation number 1, मीन्स ये हमारा इक्वेशन हो गया. बट व्हाट इज द डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, मीन्स इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ. तो इसके लिए हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे. तो टिप ऑफ द फिंगर टुवर्ड्स दिस पॉइंट एंड थंब टुवर्ड्स दिस वन. मीन्स यहाँ पे जैसे मैं यहाँ ये फिगर बना रहा हूँ, देखिए ये थंब ले लिया और टिप ऑफ द फिंगर लाइक दैट, इस तरीके से, और ये हमारा ये हो गया. तो thumb along the direction of a current and tip of the finger towards a point at which the magnetic field to be determined. तो हमारा जो पाम आएगा वो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा. तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो लेंथ इसकी ये हो गई और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गई. इसको हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू B1. यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ B1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? नाउ this one second conductor which is placed in a magnetic field and I2 is current is flowing through this conductor. So that conductor experience a force. So the force experienced by this conductor, it is given by, so that is equal to F. इसे मैं लिख सकता हूँ F2 ड्यू टू 1, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन्स B1 I2 and
L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, IBL sin थीटा होता है। यहाँ एंगल L और B1 और L के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, ये लिख लीजिए sin 90 डिग्री। सो वी कैन राइट इट दैट इज इक्वल टू B1 और I2 और इट इज L, इट इज F21। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर निकालेंगे तो F21 अपॉन L, इसे मैं लिख देता हूँ F21 डैश, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा B1 I2 and it can be written as mu naught over 4 pi and that is 2I1 I2 over R. That is a force experienced by a current carrying conductor. This one conductor, second conductor. Now what is the direction? Direction of the force. यहाँ पर इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो force, the direction of force, it is determined the Fleming left hand rule. Yes, I am changing the color of a pen. The direction of a current force. The direction of force determined by the Fleming left hand rule. तो इसका डायरेक्शन जब हम निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन आपका निकलेगा, देखिए मींस करंट का डायरेक्शन हमारा ये होगा, बी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड ऑफ द लेफ्ट हैंड in such a way, first 3 finger, thumb and 4 finger and middle finger which are perpendicular to each other. Here that magnetic field given by the forefinger and this one is given, means that is I2 middle finger along the middle finger and thumb along the direction of force. तो हम इसमें जैसे ही हम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका फोर्स का डायरेक्शन ये आ जाएगा, तो इट इज F21 डैश, ओके, F21 डैश टुवर्ड्स द कंडक्टर फर्स्ट। Similarly, we can find out F12 डैश। भाई अभी तो हमने इस पे फोर्स निकाला है, इस पे फोर्स निकाला है, ऐसे हम इस पे भी तो निकाल सकते हैं। तो इस पे भी निकालने का सेम मेथड होगा और उसमें मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएगा बेटा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दैट इज 2I1 एंड I2 अपॉन R। क्लियर? But the direction, again we can determine the direction of a force on this conductor. It is also determined by the Fleming left hand rule. Fleming left hand rule. So the direction of a force, it is in that direction. That is equal to F12 dash. Okay. In that case, by these two forces, we concluded they attract each other. When current is flowing in the same direction, these two conductors attract to each other. Clear? Next, if we change the direction, of a current, means यहाँ पे हम ले सकते हैं, पहले एक और चीज़ यहाँ पे निकाल सकते हैं। Suppose that there is a point P is there. What is the magnetic field at this point? Magnetic field निकालना है तो इसकी वजह से vertically downward direction हो जाएगी, that is equal to B1, ये नीचे की तरफ होगी perpendicular to the plane of paper in downward direction, और इसकी वजह से भी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं विच इज इन मीन्स राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, ये अपर डायरेक्शन में आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू B2। ठीक है, अगर एक ही पॉइंट पे निकालनी है और अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है I1 एंड I2 है तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? इफ द वायर कैरिंग अ सेम करंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये करंट I1 करंट हमारा
I1 करंट ये है और I2 करंट ये है, दैट इज इक्वल टू I2 करंट, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई, क्रॉस साइन हो गया, ठीक है, और इसकी वजह से भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन ही आएगा। तो B1 B2 का दोनों का इधर ही आएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, इसमें ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और इसमें टोटल अगर हमें B निकालना है तो B1 की वजह से निकाल सकते हैं, इसे सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपका यहीं पर हो गया। यहीं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आता है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर सर्किटेड लॉ। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर सर्किटेड लॉ के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ एक स्पेस चाहिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर सर्किटेड लॉ, एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ एम्पियर सर्किटेड लॉ जो सॉरी डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, जनरली हम एम्पियर की डेफिनेशन वो वाली लिख देते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। इस तरीके से हम डेफिनेशन लिख देते हैं। लेकिन जब भी आप 12th क्लास में और डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात की जाएगी तो दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। उसकी डेफिनेशन हम इस जगह से लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा, ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। डेफिनेशन ऑफ अ मीन्स डेफिनेशन ऑफ अ 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज दैट करंट, इसको मैं लिखे देता हूँ, ठीक है। 1 एम्पियर इज दैट करंट which maintained into infinitely long conductors of negligible area of cross section, cross sectional area, negligible cross sectional area या एरिया negligible क्रॉस सेक्शनल एरिया इसे रख देते हैं यहाँ पर negligible क्रॉस सेक्शनल एरिया separated by 1 meter, in vacuum causes a force of 2 into 10 to the power -7 Newton on each other each other की जगह each मीटर लिख देंगे, each meter of other wire। देखिए यहाँ पर देखेंगे इस फॉर्मूले को, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज मीन्स it is maintained between two infinitely long parallel conductors, negligible area of cross section, and these two are separated by a distance 1 meter। इन दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, and the force between them,
फोर्स बिटवीन दैम दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं इनकी वैल्यूज रखता हूँ, देखिए डिफरेंट, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए म्यू नॉट की वैल्यू मैंने रखी, म्यू नॉट की वैल्यू रखी दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 4 पाई एंड 2 इंटू 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं तो एम्पियर, 1 एम्पियर लिखा, 1 एम्पियर लिखा, और 1 एम्पियर करंट यहाँ पर भी फ्लो कर रहा है, एंड अपॉन डिवाइडेड बाई 1 मीटर, एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ F21, तो यहाँ पर दैट इज इक्वल टू ये F21 लिख देते हैं, और इट इज़ अ 1 मीटर। तो 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, ये हमारा आ जाएगा। तो अगर इन दोनों की ईच लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एक्सपीरियंस दिस वन अमाउंट ऑफ फोर्स, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विच इज 1 मीटर। ओके।